अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Am I audible? आवाज Walaikum salam rahmatullahi wa barakatuhu. Yes, mashallah, you're audible. Okay, for all those of you who don't know, this morning Dr. Safina's husband passed away. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi min al khataya kama naqqaita thawb al abyada min ad danas wa abdilhu daran khayran min darihi wa ahlan khayran min ahlihi wa zawjan khayran min zawjihi wa adkhilhu jannah wa a'idhu min adhabil qabri أو من عذاب النار آمين يا رب. It is a shocking news. Amin. It is a shocking news for all of us. And Amen. क्या वजह है, क्या sickness थी, क्या नहीं. I just happened to speak to her for few seconds. Actually, my Aqidah classes was on when I got the call, and I was not able to speak to her. And she doesn't want to disclose also, knowing my delicate stage. But anyways, I am in touch with her daughter. Inshallah, जो भी update होता है, जैसे होता है, I will inshallah post it in the group. Ideally speaking, for us, it is good that we make dua for him and for her. And rather than calling और उनको थोड़ा emotional sentimental नहीं करना है, we have to be like supporting system for her. So the best thing we can do is make dua for her, and that is what we will continue inshallah. And I'm in touch with her daughter and stuff, so inshallah मैं आप लोगों को अपने तरफ से जो भी updates होंगे वो दूंगी. But this is something for us to realize and understand कि मौत कभी भी किसी भी वक्त आ सकती है. लेट अस ऑल बी प्रिपेयर्ड फॉर इट इन टर्म्स ऑफ कि हमारे मामलात जो हैं हम लोगों के साथ उस तरीके से रखें, हमारे अमल, हमारी सारी चीज़ें जो हैं उस चीज़ उसको ऐसे करके रखें कि वी आर रेडी टू फेस अवर लॉर्ड. तो इट इज़ अ लेसन फॉर ऑल ऑफ अस दैट कभी भी कुछ भी कहीं भी हो सकता है. आपकी मौत जो है वो आपको वक्त नहीं देगी, आपको बता के नहीं आएगी. जहाँ पर, जिस मिट्टी पर, जिस ज़मीन में, जिस हालत में लिखी है, आप वहाँ पर ऑटोमेटिकली पहुँच जाएंगे. तो मे अल्लाह हेल्प us to realize this and may Allah give sabr to the family of the deceased, क्योंकि ये पूरा एक सिस्टम जो है हिला देने वाली बात है. इट्स वेरी वेरी शॉकिंग. बस अल्लाह बी काइंड एंड मर्सीफुल. इंशाअल्लाह आगे के जो मरहले हैं उनके अल्लाह ताला आसानी करे. तो बस इंक्लूड हर इन योर प्रेयर्स. एंड कोर्स जब तक कि वो ठीक थोड़ा बेटर नहीं फील करती, क्लासेस विल नॉट रिज्यूम. इंशाअल्लाह वी विल सी how do we manage things, but as of now this is the current status, and inshallah we will continue. Today we have 62nd session of Ar-Rahiq al-Maktoum, the sealed nectar, biography of our noble prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. कल हम लोगों ने कहाँ पर स्टॉप किया था? वो था द नंबर ऑफ डेलीगेशंस दैट हैड हैपेंड. तो we discussed two cases. हम थर्ड वाले में थे. So the third delegation of Farwa bin Amr al-Judami. Farwa was an Arab leader in the Byzantine army. He was a Byzantine agent ruler by proxy over the Arabs allied to the Byzantines. His center was at Man, and his rulership extended to the surrounding areas in the lands of Asham. थर्ड डेलीगेशन जो था वो फरवा बिन अमर अल जुदामी का था. फरवा जो था वो अरब लीडर था बाइजेंटाइन आर्मी के साथ, उसका अलाई प्रॉक्सी था, और उनका जो सेंटर था वो मान था, और उनकी रूलरशिप जो थी वो एक्सटेंड हो रही थी सराउंडिंग एरिया में. जस्ट वन सेकंड प्लीज. सो उनकी जो रूलरशिप थी वो सराउंडिंग एरिया तक मौजूद थी, अशाम के एरिया से. उन्होंने मुस्लिम्स का स्टैमिना और करेज देखा, और वो देखकर वो मुसलमान हो गए. द बैटल ऑफ मुता विच टुक प्लेस इन द 8th ईयर ऑफ अल हिजरा कंपेल्ड हिज एडमिरेशन. यानी ये कौन से बैटल की बात थी? बैटल अल मुता, जो कि 8th आफ्टर हिजरी में हुआ था. उस टाइम पे ही गॉट वेरी इंस्पायर्ड बाय द स्टैमिना और करेज, मुस्लिम आर्मी का स्टैमिना
और उनकी बहादुरी देखकर वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए और इस्लाम में दाखिल हो गए. He sent a white mule as a gift with a messenger of his to Allah's messenger to inform him of his conversion into Islam. उन्होंने एक वाइट म्यूल जो है वो भेजा एज अ गिफ्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनको इन्फॉर्म किया कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया. When the Byzantines learned that he embraced Islam, they sent him to prison. जैसे ही बाइजेंटाइन वालों को मालूम पड़ा कि इन्होंने इस्लाम कबूल किया तो उन्होंने उनको जेल में डाल दिया. At first, they gave him an opportunity to choose one of the two. Either he turns back from Islam or death shall be his punishment. After his refusal, they crucified him and beheaded him at a spring called Afra in Palestine. उनको जब जेल में डाल दिया गया तो उनको चॉइस दी गई कि या तो फिर वो अपने दीन से पलट जाए या उनको कत्ल कर दिया जाएगा. तो वो अब दीन से अल्हम्दुलिल्लाह पलटे नहीं और उनको जो है क्रूसीफाई कर दिया गया, यानी उनके हाथ में कील लगा के उनको ऊपर क्या कहते हैं लकड़ी के पाइल पे जैसे क्रूसीफाई कर दिया गया और उनका सर जो है कलम कर दिया गया एक जगह पर जिसका नाम था अफरा, फ़लस्तीन में. Number 4, the delegation of Suda. The arrival of this delegation was after the departure of Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam from Al-Jirana in 8th after Hijri. जो डेलीगेशन ऑफ सुदा थे वो आए अल्लाह मैसेंजर का जब डिपार्चर हुआ था अलजिराना से 8 आफ्टर हिजरी में. It was because Allah's messenger had already dispatched a mission of 400 Muslims and asked them to go to Suda, which was a spring in Yemen. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 400 मुस्लिम्स को रवाना किया था सुदा में और वहाँ पर वो एक स्प्रिंग था यमन में, उधर उसका नाम था सुदा. While the mission was camping there at the starting point of canal, Ziyad bin al-Haris as-Suda learned of their stay. So he came to Allah's messenger and said, I have come to you as a deputy of my people. So tell your army to go back and I will give a guarantee on the behalf of my people. अभी जियाद बिन अल हारिस असुदाई था वो, उसको जैसे ही पता चला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आर्मी के साथ आए तो वो उनके पास आया और कहा कि मैं हूँ डेप्यूटी अपने लोगों का, मैं यानी अपने लोगों का अमीर बन के आया हूँ, आप अपनी आर्मी को वापस भेज दो, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपकी प्रोटेक्शन के लिए. यानी the army was sent away from the canal. In his turn, as Sudai went back and encouraged and urged his people to come and meet Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam. Eventually, 15 of them came and pledged allegiance to him as true Muslims. अभी ये सुदाई अपने लोगों के पास गया, उन लोगों को कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हुए हैं, उनसे मुलाकात करें. तो तकरीबन 15 लोग आए, उन्होंने उनसे बैत की और मुसलमान हो गए. Returning home, they in their turn urged the rest to become Muslim. Thus Islam spread among them. Later on, 100 men joined Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam in Hajjatul Wada. फिर उसके बाद तकरीबन 100 लोग जो थे वो मुसलमान हुए एंड अल्हम्दुलिल्लाह जब आखिरी हज था हज्जतुल विदा तो उसमें वो ज्वाइन भी हुए थे. The arrival of Ka'ab bin Zuhair bin Abi Sulma. Ka'ab was from a family of poets. Ka'ab जो थे दूसरा अभी डेलीगेशन नंबर 5 अराइवल ऑफ काब बिन जुहैर बिन अबी सुलमा, ये जो है वो फैमिली ऑफ पोएट्स को बिलोंग करते थे और वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट पोएट्स अमंग द अरब्स. अरब्स के अंदर उनकी गिनती बेस्ट शायरों में से होती थी. He would satirize the Prophet when he was not a Muslim in 8th after Hijri. When Allah's Messenger had returned from the invasion of Taif, Bujair bin Zuhair wrote a letter to his brother Ka'ab warning him and advising him. Allah's Messenger killed some men in Makkah who used to satirize and harm him, and the poets who survived fled in all directions for their lives. अभी ऐसा हुआ कि ये जब तक मुसलमान नहीं हुआ था तब तक नेगेटिव कमेंट्स वाली पोएम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट में बनाता था. तो अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है तैफ से जब लौट रहे थे इन्वेजन के बाद, तो बुजैर बिन जुहैर जो है वो जो उनका भाई है, काब बिन जुहैर का भाई है, उसने लेटर लिखा काब को वार्न करते हुए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में चंद लोगों को मारा जो पोएट्स थे और उनके बारे में नेगेटिव कमेंट्स करते थे और हार्म करते थे. एंड द पोएट्स हु सर्वाइव, जो जिंदा बच गए थे, वो यहाँ वहाँ अपनी जान बचाते हुए भाग रहे थे. तो उन्होंने कहा अगर आपको अपनी जान बचानी है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचो. वो उन लोगों को कत्ल नहीं करते जो माफ़ी मांग लेते हैं, लेकिन अगर तुम रिफ्यूज़ करते हो तो ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हारी जान बचेगी कि नहीं बचेगी. The two brothers corresponded with one another for a long time until Ka'b felt awkward as if the earth has restricted around him. यानी उनके भाई ने उनको अच्छा खासा अच्छी तरह से उनको समझाने की कोशिश करी, बहुत ज़्यादा डिस्कशन और उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी. उसके बाद जो है काब को सडनली एकदम घुटन सी महसूस होने लगी कि अब मेरे लिए फ्रीडम नहीं है कि मैं आराम से इस ज़मीन पे घूम सकूं.
So arriving in Medina, he stayed at a man's house from Juhayna as a guest. वो मदीना में पहुंचे और एक गेस्ट की तरह रहे एक बंदे के घर पे जो जुहैना को बिलोंग करते थे. They performed the morning prayer together. When he was about to leave, the man suggested that he go to Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam. He was there, sat by him, and placed his hand in his. Allah's Messenger, who had never seen Kaab before, did not recognize him. अभी जैसे ही वो नमाज मॉर्निंग की खलास हुई तो फिर वो जो जिनके साथ वो रह रहे थे उन्होंने उनको एडवाइस किए कि आप जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलें, वो अभी मस्जिद में मौजूद हैं. तो काब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके उनके हाथ को पकड़ के अपना हाथ रखे. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको पहचानते नहीं थे. फिर काब देन सेड, ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, काब बिन जुहैर हैज कम टू यू एज अ रिपेंटेंट मुस्लिम. तो काब कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास काब बिन जुहैर आया है और माफ़ी चाहता है, माफ़ी तलब करता है. Will he be secure and forgiven if I fetch him? Allah's messenger said, yes. I am Ka'b bin Zuhair, he said. Upon hearing that, one of the helpers rose to his feet and asked the messenger to let him cut his throat. अभी जैसे ही उसने अपनी शनाख्त की, बताया कि मैं ही काब बिन जुहैर हूँ, तो ये सुनते ही एक अंसार जो है वो झट से खड़े हो गए और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि इसका गला काट देते हैं. लीव हिम अलोन सेड द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उसको छोड़ दो, वो अभी माफ़ी मांग रहा है, मुसलमान हो गया, माफ़ी मांग रहा है. आफ्टर हिज डिस्पोजल ऑफ द पास्ट, यानी पिछला फिर उसको हमें भूल जाना है, माफ़ कर देना है. Kaab then recited his well-known poem Suad, in which he praised the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thanked him and apologized for the wrongs he has done. अभी काब ने अच्छी एक प्यारी सी पोएम जो है जिसका स्टार्टिंग सुआद से शुरू होता है वो स्टार्ट किया. उसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रेजेस थी, उनका शुक्र अदा कर रहा है और उनसे माफ़ी मांग रहा है उन सारी जो भी गलत काम उसने की है. He acknowledged Muhammad's mission. Both immigrants and helpers were spoken of in this poem, but differently. He praised the immigrants but criticized the helpers, for one of them demanded the Prophet's permission to kill him. अब उसकी पोएम के अंदर काब ने जो है मुहाजिर की तारीफ की और अंसार के बारे में इतनी ज़्यादा तारीफ नहीं की, क्रिटिसाइज किया उनको, क्योंकि एक अंसारी जो था उसने कहा कि झट से उसने कहा कि इसकी गर्दन काट देते हैं, यानी उसका कत्ल कर देते हैं. Later on, Kaab tried to compensate for that by praising the helpers in another poem. फिर दूसरी पोएम के अंदर उसने कंपनसेशन के लिहाज से अंसार की भी तारीफ की अपनी पोएम के अंदर. Delegation number 6, the Udraha delegation. This delegation consisted of 12 men and arrived in Medina in Safar, 9th after Hijri. ये उद्रा डेलीगेशन जो था ये 12 आदमियों का था जो मदीना में सफ़र को आए 9th after हिजरी में. One of them was Hamza bin an-Numan radiyallahu anhu. When they were asked who they were, they said, we are Bani Udrah, the maternal foster brothers of Qusay. हमजा बिन अन नुमान रदियल्लाहु अन्हु उसमें शामिल थे. जब उनसे पूछा गया कि आप कौन हैं तो उन्होंने कहा हम बनी उदरा है और हम मटर्नल फॉस्टर ब्रदर हैं कुसै के. मटर्नल यानी मॉम की तरफ, ननियाल की तरफ से. We are the ones who supported Qusay and removed Khuzaha and Bani Bakr from the bosom of Makkah. तो वो अपनी हिस्ट्री बताने लगे कि हमने कुसै को सपोर्ट किया था, कुसै ट्राइब को, और हमने खुजा और बनी बकर को जो है मक्का से उधेड़ा था. We are a people of relatives and kin. हम लोग जो हैं वो रिश्तेदार हैं. Relatives of बोलते ना वो के रिश्तेदार हैं. So Allah's messenger welcomed them and gave good tidings to them of the conquest of Asham. On the other hand, forbade them from consulting a soothsayer and from eating the slain animals they slaughtered. Eventually they became Muslims, stayed there for several days and then left. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको खुशखबरी दी कि आज शाम का जो है उन लोगों ने फतह हासिल कर ली थी. दूसरी जगह पे वो उनको मना करने लगे कि नजूम के पास ना जाया करो और स्लेन एनिमल्स जो है उसको ज़िबा मत करा करो, यानी उनको बेसिक ऑफ इस्लाम एंड हराम एंड हलाल की बातें बताने लगे. और फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मुस्लिम हो गए. कुछ दिनों तक वो रखे मदीना, फिर निकल गए. The Bali delegation, delegation number 7. Their arrival was in Rabiul Awal, 9th after Hijri. They embraced Islam and stayed in Medina for 3 days. Their chief, Abu ad-Dubayb, wondered whether hospitality was rewarded by Allah. Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam said, yes, and so is any charity you offer to poor or rich people as sadaqah. अब बाली डेलीगेशन जब आए 9th रबी उल अव्वल को, उन्होंने दीन इस्लाम कबूल किया. मदीना में वो 3 दिन थे और उनका जो चीफ था अबू अद-दुबैब सोच रहे थे कि ये जो हॉस्पिटैलिटी है ये अल्लाह की तरफ से रिवॉर्ड है. तभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ जी, ये चैरिटी जो है जो आप गरीब और रिच लोगों को यानी हॉस्पिटैलिटी दिखाते हैं, चैरिटी देते हैं, ये सब सदका है.
He also inquired about the time allotted for hospitality, to which the Prophet responded 3 days. फिर उन्होंने कहा कि ये जो हॉस्पिटैलिटी है, यानी ये अपने गेस्ट की तीमारदारी करना या उन लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करना, उनको सर्व करना, उनको शेल्टर फूड प्रोटेक्शन देना, तो ये कितने दिन तक है अलाउड? तो उन्होंने कहा 3 दिन. He asked, what about the stray Eve? The Prophet said, it is either yours or your brother's, otherwise it goes to the wolf. तो यानी वो जो एक स्ट्रे ईव था, ईव को उर्दू में क्या कहते हैं, एनीवेज एक जानवर है, तो उसके बारे में कहा, पूछा कि ये जो फारिक है घूम रहा है उसके बारे में क्या? तो कहते हैं या तो ये तुम्हारा है या तुम्हारे भाई का है, अगर इन लोगों का नहीं है तो वुल्फ का है, यानी वो वुल्फ खा जाएगा. ही इंक्वायर्ड अबाउट द स्ट्रे कैमल, इट इज नन ऑफ योर बिजनेस, लीव इट अलोन until its owner finds it. तो उन्होंने कहा कि ये जो ऐसी फारिक ऊँट है उसका क्या है? कहते हैं कि इसके बारे में आप मत करो, वो आपका बिजनेस नहीं है, उसका ओनर जो है वो आके उसको खुद ढूंढ लेगा. Number 8, delegation. The Thaqif delegation. Their arrival was in Ramadan 9th after Hijri, after the return of Allah's Messenger from Tabuk. Thaqif delegation 9th after Hijri Ramadan में उनसे मुलाकात हुई थी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबुक से लौट गए थे. As to how they became Muslims, this could be deduced from the following. वो उन्होंने कैसे दीन इस्लाम कबूल किया था? उनका जो चीफ था उर्वा बिन मसूद अल-थक़ीफ़ी came to see Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam after the latter's return from at-Taif in Zulqa'ada 8 after Hijri. इनका जो चीफ था सकीफ का, उर्वा बिन मसूद अल-थक़फ़ी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलने आए थे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत-तैफ से जुल्क़ादा 8 आफ्टर हिजरी को लौटे. उर्वा जो थे वो मुस्लिम बन गए थे, और he thought that if he tells his people about Islam and call them to embrace it, they would do so because he had always been an obeyed leader. उर्वा ने सोचा कि अगर उसने अपने लोगों को बताया कि अगर उन्होंने दीन इस्लाम कबूल कर लिया है तो क्या कहते हैं उससे, कि वो जो उनके लोग जो हैं वो ज़रूर उनकी बात मानेंगे, लेकिन where did I go? क्योंकि वो जो है उनको बहुत, उनके जो लोग थे, उनकी आवाम उनको बहुत ओबे करती थी. He was even more beloved to them than their firstborn, यानी उनको वो इतने प्यारे थे कि अपने पहले बच्चे से भी ज्यादा वो उनको प्यार करते थे. बट कॉन्ट्ररी टू दैट, व्हेन ही कॉल्ड देम टू इस्लाम, दे शॉट एरोज एट हिम फ्रॉम एवरी डायरेक्शन एंड किल्ड हिम. लेकिन जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया और वो बात उनके लोगों को पता चली, तो नेगेटिव ऐसा हुआ कि उन लोगों ने हर डायरेक्शन में एरो फेंके और उनको कत्ल कर दिया. दे रिमेन एज दे वर फॉर मंथ्स बिफोर दे स्टार्टेड डिस्कसिंग द सिचुएशन अगेन अमंग देमसेल्व्स. काफ़ी महीनों तक वो वैसे ही रहे, आपस में फिर उन्होंने डिस्कस करना शुरू किया. Upon realizing that they were incapable of fighting to the neighboring Arabs who had paid allegiance to the Prophet and converted to Islam, they made up their mind to dispatch a man to Allah's Messenger. जब उन्होंने रियलाइज किया कि वो आसपास के नेबरिंग अरब्स के साथ फाइट करने लायक नहीं है, तो फिर उन्होंने जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैत किया और फिर इस्लाम कबूल किया. दे मेड अप देयर माइंड टू डिस्पैच अ मैन टू अल्लाह's मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. उन्होंने इरादा कर लिया और एक आदमी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा. दे कंक्लूडेड दैट अब यलील बिन अमर वुड बी द राइट मैसेंजर. और उन्होंने किसको सिलेक्ट किया? अब यलील बिन अमर को सिलेक्ट किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपना मैसेंजर बना के भेजने के लिए. अब they refused to do such a thing lest they should kill him as they had killed उर्वा रदियल्लाहु अन्हु. अब जो है उसने मना कर दिया क्योंकि उसे पता था कि उन लोगों ने उर्वा रदियल्लाहु अन्हु को किल किया है, तो हो सकता है शायद कि ये सहाबाज जो हैं इनको भी मैसेंजर को किल करे, अमर को. आई विल नॉट डू सच अ थिंग अनलेस यू सेंड सम अदर मैन विद मी, सेड अब्द. उसने कहा कि मैं अकेले नहीं जाऊंगा, मेरे साथ कोई और आदमी भी भेजो. सो दे वेंट 2 men of their alliance and 3 others from बनी मलिक. तो 5 आदमी उनके साथ दे दिए गए और जो उनके अलाइज के थे बनी मलिक से. The 6 of them included Uthman bin Abul al-Thaqafi, who was the youngest. तो उस्मान बिन अबुल जो थे वो सबसे छोटे थे उनमें और वो छठे मेंबर थे. When they entered into the Prophet's audience, a tent was erected in the corner of the masjid so that they might listen to the Quran and see the people in the prayer. जैसे ही वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टेंट में गए, तो एक उनकी मस्जिद को, टेंट में नहीं एक्चुअली मस्जिद गए, तो उनकी मस्जिद को लग के एक छोटा टेंट बनाया गया जहाँ से वो कुरान सुन सकते थे और लोगों को सलाह जो है परफॉर्म करते हुए देख सकते थे. During their stay, they came again and again to the Prophet, who kept on calling them to embrace Islam until their chief asked Allah's Messenger to enter into a peace treaty between him and Thaqif, by means of which he would allow them to commit fornication, drink wine, and deal with usury. अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बार बार दीन इस्लाम की तरफ दावत दे रहे थे.
फिर उनके चीफ जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहते हैं हमारे साथ आप एक सुलह वाली ट्रीटी साइन करो आपके और हमारे बीच में, और इसमें हमको अलाउ करो कि हम जो हैं वो वाइन भी पिए, दारू भी पिए, अल्कोहल, और रिबा भी लें, और क्या कहते हैं उसको, इलीगल फॉर्निकेशन यानी शादी के अलावा भी रिलेशनशिप मेंटेन करें। दे ऑल्सो आस्क्ड हिम टू इंज्योर देयर आइडल अल्लाह और टू oblige देम टू प्रे, परफॉर्म द प्रेयर। और फिर उनकी जो बुत था अल्लाह, उसको भी, उसके अंदर भी उनका अकीदा रहे और वो उसकी भी इबादत करें। फाइनली दे इंसिस्टेड दैट दे वुड नॉट नॉक डाउन द आइडल्स देमसेल्फ। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी मूर्तियों को खुद तोड़ेंगे नहीं। बट अल्लाह's messenger सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टर्न डाउन ऑल देयर रिक्वेस्ट। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी सारी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। दे वेंट aside to council realizing that there were no other alternatives. They submitted and professed Islam. लेकिन उनको अंदाजा था कि इसके अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं है, तो उन्होंने अपनी काउंसिल बिठाई और फिर इस्लाम को कबूल किया। The only condition that was insisted on was that the demolition of Allah should be dealt with and handled by Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam, whereas Thaqif should in no way knock it down themselves. Allah's Messenger agreed and took a pledge from them. सब सब कुछ मान लिया गया था, लेकिन उनकी एक कंडीशन थी कि सकीफ के लोग जो हैं वो अल्लाह, जो उनकी मूर्ति है जिसकी वो पूजा करते थे, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। उसको डिस्ट्रॉय कौन करेंगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एंड नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात पे अग्री कर गए। Being the most attentive and keenest to understand Islam and learn the Quran, Uthman bin Abul As was appointed by Allah's Messenger as the chief of his people. उस्मान बिन अबुल आस जो थे वो बहुत अटेंटिव थे और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे इस्लाम को सीखने के लिए और कुरान को सीखने के लिए, तो उनको उनका चीफ बनाया गया था। His keenness to learn the Quran and understand Islam was clearly apparent, though through his behavior during their stay. उनकी जो कैफियत थी थ्रू आउट द स्टे, उस्मान बिन अबुल आस जो थे वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे दीन इस्लाम और कुरान को सीखने के लिए, तो वो उनकी बिहेवियर से, उनके एटीट्यूड से पता चल रहा था। Every morning, the group of delegates would go to see Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam. Being the youngest one, Uthman bin Abul As radhiyallahu anhu was left behind to watch their camels and belongings. तो हर सुबह में जो है डेलीगेट्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते थे, और उस्मान बिन अबुल आस रदियल्लाहु अन्हु जो बहुत छोटे थे तो उनको कहते थे कि कैमल्स और बिलोंगिंग्स का हमारी ख्याल रखो। एट नून व्हेन दे वुड कम बैक एंड स्लीप, जब दोपहर में वो लोग सब आके सो जाते थे, तो उस्मान रदियल्लाहु अन्हु यूज्ड टू गो टू अल्लाह's मैसेंजर इन ऑर्डर टू लर्न कुरान एंड इंक्वायर अबाउट रिलीजियस मैटर्स। जब दोपहर में ये लोग सो जाते थे तो उस्मान रदियल्लाहु अन्हु आके उनसे कुरान के बारे में और रिलीजियस मैटर्स के बारे में सीखते थे, तालीम हासिल करते थे। If it happened that Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam was asleep, he would then go to Abu Bakr radhiyallahu anhu for the same purpose. अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर सो रहे या रेस्ट कर रहे होते हैं तो वो नेक्स्ट किसके पास जाते थे? अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु के पास जाके तालीम लेते थे। With the passage of time, he turned out to be a resource of blessing to his people. जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो वो अपनी कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ी नेमत साबित हुए। Later, during the apostasy wars al-Rida, when Thaqif was determined to apostatize, he addressed them saying, O people of Thaqif, you have been the last at embracing Islam, so do not be the first to apostatize. यानी एक बार जब एक वॉर थी अर्रिदा वाली, उसमें सकीफ वाले जो थे वो कहीं ना कहीं मुर्तद होने के लिए तैयारी में थे, तभी वो आके अपने लोगों को उन्होंने एड्रेस किया तो और कहा था कि आप लोग आखिर में अपने दीन इस्लाम कबूल किया है, तो मुर्तद होने में नंबर वन पहले मत हो जाओ। कॉन्सिक्वेंटली दे गेव अप अपोस्टेसी एंड रिमेन अधेयर टू इस्लाम। इवेंचुअली उन्होंने जो है मुर्तद का जो इरादा था वो चेंज करके इस्लाम पे जमे रहे। द ग्रुप ऑफ डेलीगेट्स रिटर्न होम एंड डिसाइडेड टू कंसील द ट्रूथ फॉर द टाइम। डेलीगेट्स जो है वो घर पहुंचे और फॉर द टाइम बिंग ये सच्चाई कि उन्होंने दीन इस्लाम कबूल किया है उन्होंने छुपाया। They told their people that they should expect a fight at any moment, pretending to be grieved and depressed. They claimed that Allah's Messenger demanded that they should embrace Islam and abandon adultery, drinking wine, dealing with usury, and some other things, or else he would fight them. उन्होंने अपने लोगों के पास ऐसे प्रिटेंड किया कि कभी भी जंग हो सकती है और हम बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको कहा है कि हमें इस्लाम को जब हम कबूल करते हैं तो हमें ये बदकारियों वाले काम बंद करने पड़ेंगे, शराब नहीं पीनी पड़ेगी और यूजरी वगैरह हमें नहीं लेना पड़ेगा, और दूसरी सारी चीज़ें
जो अलाउड नहीं है दौरे जालियत की, वो हमें कम नहीं करनी पड़ेगी. Seized by the arrogance and the zeal of al-Jahiliyyah, Thaqif remained for days intent on fighting. अब उनके अंदर भी जो जहालियत थी और बहुत ज़्यादा तकब्बुर था, तो इस वजह से वो लोग जो हैं फाइट करने के लिए प्रिपेयर थे. Then Allah cast terror and depression in their hearts in such a way that they gave up the idea of fighting and thought that the delegation should go back to the Prophet and announce their acceptance of the conditions. भले उनमें तकब्बुर था, जैसा भी घमंड था, अल्लाह ताला ने उनके दिलों में खौफ तारी कर दिया, डिप्रेशन तारी कर दिया. फिर उन्होंने लड़ने की सोच जो है बिल्कुल अपनी तर्क कर दी, और फिर उन्होंने सोचा कि हम एक डेलीगेशन भेजते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और उनको हमारा इरादा बताते हैं कि हमें फाइटिंग नहीं करनी है और हम आपकी शर्तों को मानने के लिए तैयार हो गए. It was then that the group of delegates told them the truth and revealed the terms of their peace talks with the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Consequently, the people of Thaqif embraced Islam. जब उन्होंने ऐसी जाहिर की कि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके बात करना है और उन टर्म्स एंड कंडीशंस को अग्री करना है, तब ये जो डेलीगेट्स मुसलमान ऑलरेडी हो चुके थे उन्होंने जाहिर किया और बताया कि ऑलरेडी इन्होंने किस तरीके की पीस ट्रीटी उनके साथ साइन की है, और मतलब पीस टॉक्स जो उनके हुए, एंड इवेंचुअली सारे के सारे तकीफ के जो थे उन्होंने दीन इस्लाम कबूल किया. Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam sent some people to destroy the idol Allah under the command of Khalid bin al-Walid radhiyallahu anhu. अभी जो उनका कंडीशन था, अल्लाह को जो डिस्ट्रॉय करने की जिम्मेदारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ली थी, तो कमांड ऑफ खालिद बिन वलीद जो था उनके अंडर में ये काम हुआ. Al-Mughira bin Shuba radhiyallahu anhu stood to his feet, held the hoe and axe, and said to his companions, "By Allah, I'll make you laugh at Saqif." He struck Allah with them and pretended to fall down while doing so. So the people of Saqif were frightened at the sight and said, "May Allah dismay Al-Mughira. The goddess has killed him." अभी अल मुगीरा जो थे वो उन्होंने कहा अपने साहबाज को, अपने कंपेनियंस को, कि वल्लाही मैं आप लोगों को सकीफ में जो है हंसाऊंगा. उन्होंने अल्लाह को जो है अटैक किया और ऐसे प्रिटेंड किया कि वो गिर गए खुद. तो जो सकीफ के लोग थे वो डर गए. उन्होंने कहा कि मुगीरा को हमारे गॉड ने किल कर दिया. Hearing that, Al-Mughira jumped up to his feet and said, "May Allah bring shame on you. Allah is nothing but a mass of dirt and stones." जैसे ही वो और मुगीरा रदियल्लाहु अन्हु ने इनकी बात सुनी तो वो झट से अपने पैरों पे खड़े होके फिर उनको उनसे ये कहा कि अल्लाह ताला आपको शर्मिंदगी दिखाए, अल्लाह कुछ भी नहीं है, सिर्फ मिट्टी और पत्थर है. Then he struck the door and broke it. He mounted its highest wall and so did the other men. They knocked Allah down and until they leveled it to the ground. फिर वो ऊपर से चढ़ के और सारा कुछ उसको तहस नहस करके पूरा ग्राउंड में बिखार दिया. Then they dug up its foundation and brought out its jewels and garments to the great astonishment of Thaqif. फिर उन्होंने डिग किया फाउंडेशन को और नीचे से ज्वेल्स और गारमेंट्स निकाले. ये देखकर सकीफ के लोग एकदम हैरान हो गए. Khalid bin al-Walid radhiyallahu anhu and his group came back to Allah's messenger carrying Allah's jewels and garments. Allah's messenger distributed them and thanked Allah for helping his prophet and solidifying his religion. फिर वो लोग जो हैं मुगीरा रदियल्लाहु अन्हु और खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु, वो लोग वो खजाना जो ज्वेल्स था वो और गारमेंट्स लेके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बांट दिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने नबी की मदद की और उनके रिलीजन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया. नंबर 9, द मैसेज ऑफ द यमन किंग्स. After the return of Allah's kings of Himyar, Al-Harith bin Abd Kilal, Nu'aym bin Abd Kilal, and An-Numan bin Qa'il, who were the rulers of Dhiren. Hamdan and Muafir, their messengers was Malik bin Murra al-Rahawi. अभी यमनी किंग्स के बारे में बात हो रहा है. जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबुक से लौटे तो एक मैसेज आया किंग्स ऑफ हिमायर से, जिनका नाम था अल हारिस बिन अब्द खिलाल, नुआइम बिन अब्द किलाल एंड अनुमान बिन कील. ये रूलर्स थे दी रैन के. हमदान और मुआफिर उनके मैसेंजर थे, मालिक बिन मुरा अर रहावी. They sent him in order to inform the prophet that they had embraced Islam. इन्होंने इन्फॉर्म करना था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि इन्होंने दीन इस्लाम कबूल किया और शिर्क से अलग हो गए. In reply to this message, Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam stated the rights and responsibilities of the believers. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैसेज भेजा कि इनके राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, यानी इनके हुकूक और हक क्या होंगे और क्या बिलीवर्स को करना चाहिए. Gave them the promise of Allah and the promise of His Messenger for those entering covenants, provided they paid the tribute. He said to them, some of his companions under the command of Muad bin Jabal radhiyallahu anhu.
फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इंस्ट्रक्शंस और प्रॉमिस अपने बताए कि अल्लाह का वादा क्या है जो ये कोवेनेंट में आता है और कैसे उनको उनके फ़ायदे क्या हैं। फिर उन्होंने अपने कुछ सहाबा भेजे जिनकी लीडरशिप मुआद बिन जबल रदियल्लाहु अन्हु की थी। नंबर 10, द हमदान डेलीगेशन। द अराइवल ऑफ दिस डेलीगेशन वाज इन द 9th The arrival of this delegation was in the 9th after Hijri, after the messengers returned from Tabuk. Tabuk के बाद क्या है ये किस्सा? 9th after Hijri में Allah's messenger gave them a pledge to guarantee the fulfillment of their demands. He appointed Malik bin An-Namat as chief over those of his people who embraced Islam. हमदान डेलीगेशन जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबूक के आने के बाद आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ बैत ली, गारंटी दिया कि उनकी डिमांड्स पूरी हो जाएगी और उन्होंने मालिक बिन अन्नमत को उनका चीफ बनाया और उन्होंने दीन इस्लाम कबूल किया। खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु was sent with the purpose of calling the rest of them to Islam. खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु को उन्होंने भेजा ताकि वो बाकी जो हैं वो भी इस्लाम को कबूल करें। He stayed with them for 6 months calling them to Islam but no one responded to his call. 6 महीने तक उन्होंने दावत दी लेकिन किसी ने भी दीन इस्लाम कबूल नहीं किया। Later, Ali bin Abi Talib radiallahu anhu dispatched and Khalid radiallahu anhu was ordered to return. अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रदियल्लाहु अन्हु को भेजा और खालिद रदियल्लाहु अन्हु को वापस बुलाया। Upon arriving at Hamadan, Ali radiallahu anhu communicated to them a message from Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam and called them to Islam. हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु ने उनको मैसेज दिया और कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मैसेज है और आप इस्लाम में दाखिल हो जाओ। They responded to the call and became Muslims. उन्होंने उनकी बात सुनी और मुस्लिम हो गए। Ali radiallahu anhu wrote to Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam, informing him of the good news. Allah's Messenger was briefed on the content of that letter, so he prostrated, then raised his hand up and said, "Peace be upon Hamdan, peace be upon Hamdan." जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर दी गई तो उन्होंने कंटेंट ऑफ द लेटर जो है वो ब्रीफली पढ़ा एंड देन फिर वो सुजूद में गए, फिर उन्होंने अपना सर ऊपर उठाया और कहा, पीस बी अपॉन हमदान, पीस बी अपॉन हमदान, यानी उसके हमदोसना मतलब अल्लाह का शुक्र अदा करने के बाद फिर उन्होंने उसकी तारीफ की, हमदान की। नंबर 11, द डेलीगेशन ऑफ बनी फजारा। अपॉन द मैसेंजर्स रिटर्न फ्रॉम तबुक, यानी हम देख रहे हैं मेनली ये तबुक के बाद के ही किस्से हैं डेलीगेशंस के, यानी तकरीबन 9th ऑफ आफ्टर हिजरी का किस्सा है। द डेलीगेशन ऑफ बनी फजारा केम टू सी हिम, दैट वाज इन द 9th ऑफ आफ्टर हिजरी। अ ग्रुप ऑफ डेलीगेट्स कंसिस्टेड ऑफ मोर देन 10 men, तकरीबन 10 आदमी का एक ग्रुप था। दे केम इन ऑर्डर टू प्रोफेस इस्लाम एंड कंप्लेन अबाउट द ड्रॉट इन देयर रिलीजन। ये आए दीन इस्लाम कबूल करने के लिए और जो सूखा पड़ा था उस अपने उनके रीजन में उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए। Allah's messenger ascended the pulpit and lifted his hands and implored Allah to send rain to them and said, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपने मेंबर से उतरे, नहीं चढ़े, मेंबर पे चढ़े, उन्होंने अपने हाथ रेज किए और अल्लाह से दुआ की कि उनके इलाके में रेन भेजी जाए, बारिश हो। O Allah, let rain fall down and water your country and animals, and spread your mercy and bring to life the dead lands. O Allah, send rain that would be saving, comforting, and sprouting grass and overwhelming vast areas sooner and not later. Let it be useful rain and not harmful. O Allah, let it be rain of mercy and not rain of torture and chastisement. Let that rain not be destructive nor cause floods. O Allah, send us down water and help to fight the enemies. एकदम ब्यूटीफुल दुआ है कि अल्लाह ताला से कह रहे हैं कि भाई बारिश इधर हो इस कंट्री में और एनिमल्स को जो है यानी जो सूखे के वजह से जो लाइवलीहुड है वो जो डेड होते जा रहे हैं उसको फिर से ज़िंदगी अता करो और सेविंग और कंफर्टिंग हो, हरियाली हो, नबातात हो और खैर ले आए ये बारिश, ठीक है, मर्सी वाली हो, टॉर्चर या तकलीफ वाली ना हो और कोई फ्लड्स ना आए, डिस्ट्रक्टिव फ्लड्स। और अल्लाह सेंड डाउन वाटर ताकि हम अपने दुश्मनों का मुकाबला कर सकें। Number 12 delegation, the Najran delegation. Najran is a large area of land located at a considerable distance south of Makkah towards Yemen. Najran एक इलाका है जो साउथ ऑफ मक्का में पड़ता है यमन की तरफ। It included 73 villages. 73 villages इसमें included थे। It took a fast rider one day ride to cover the area. Its military forces consisted 100,000 fighters. ये जो है इसको पूरा घूमने के लिए कवर करने के लिए एरिया को एक फास्ट राइडर का एक दिन का राइड था, यानी उसकी डिस्टेंस एक्सप्लेन की गई है और 100,000 इसके मिलिट्री फोर्स फाइटर्स थे।
Their arrival was in the ninth year after Hijri. The delegation comprised of 60 men. 24 of them were of noble families. इनकी अराइवल नाइन्थ आफ्टर हिजरी को हुई थी और इनका जो डेलीगेशन था वो 60 लोगों का था. 24 of them were of noble families. ओके. उनका जो अराइवल था नाइन्थ आफ्टर हिजरी में था. द डेलीगेशन कंप्राइज्ड ऑफ 60 men. डेलीगेशन में कितने लोग थे? अराउंड 60 लोग थे. 24 ऑफ देम वर नोबल फैमिलीज. 3 आउट ऑफ 24 वर लीडर्स ऑफ नजरान. 24 ऑफ देम जो थे वो नोबल फैमिलीज के थे और 3 जो थे उसमें से आउट ऑफ 24 वो लीडर्स थे नजरान के. अब्दुल मसीह was al-Aqib, that is, he was in charge of the administration and government office. The second was As-Sayyid, the master, under whose supervision was the cultural and political affairs. His name was Al-Ayham or Shirahbil. Abu Haris bin Al-Qama was the third. ये जो तीन जो थे जो कि तकरीबन लीडर्स थे और मेजर मेजर ऑफिसर्स मैनेज कर रहे थे वो थे. नंबर वन was Abdul Masih. Ruxana, please mute your mic. Okay. अब्दुल मसीह वॉज अल अकीब, जो इंचार्ज थे एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट अफेयर्स के. दूसरे जो थे आज सैयद थे, वो सुपरविजन करते थे कल्चरल एंड पॉलिटिकल अफेयर्स का. और तीसरा थे अल अहम शराबिल अबू हारिस बिन अलकामा जो थर्ड थे. ही वॉज द बिशप टू हुम ऑल रिलीजियस प्रेसिडेंसी एंड स्पिरिचुअल लीडरशिप बिलोंग. यानी सारे जो उनके इस्लामिक लीडर्स, नॉट इस्लामिक, रिलीजियस लीडर्स और स्पिरिचुअल लीडर्स जो थे उसके हेड वो थे. When the group of delegates arrived in Medina, they met the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam and exchanged inquiries with him. But when he called them to Islam and recited the Quran to them, they refused. यानी उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ डिस्कशन तो किया, एक्सचेंज की, इंक्वायरीज हुए, लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस्लाम की दावत दी और कुरान रिसाइट किया तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया. They asked him what he thought about Isa alayhi salam. He delayed his reply for an entire day until the following Quranic reply was revealed to him. जब उनसे पूछा गया कि वो ईसा अलैहि सलाम के बारे में क्या कहते हैं तो उन्होंने अपना रिप्लाई एक दिन के लिए पूरा डिले किया और फिर कुरानिक वर्स रिलीज हुई जो सूरह नंबर 359 से 61 की है. Verily, the likeness of Jesus before Allah is the likeness of Adam. He created him from dust. Then he said to him, Be. And he was. This is the truth from your Lord. So be not of those who doubt. Then whoever disputes with you concerning him, Jesus, and after all this knowledge that he has come to you, that is, Jesus being a slave of Allah and having no share in divinity, say, O Muhammad, come, let us call our sons and your sons, our women and your women, ourselves and yourselves. Then we pray and invoke sincerely the curse of Allah upon those who lie. यानी अल्लाह ताला ने इसमें सिंपली अच्छे से एकदम क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो सेम आदम अलैहिस्सलाम की तरह ही है. उनको भी डस्ट से बनाया गया और इनको कुन करके बनाया गया और यही सच है कि और इसमें कोई भी डाउट नहीं है. ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जब तुमसे ये पूछते हैं तो जैसे जो आपके पास नॉलेज आई है आप बता दें कि ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के जो हैं वो अब्द हैं, स्लेव हैं और उनके साथ उनकी डिविनिटी में कोई उनका शिरक मतलब ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो उनके अल्लाह के साथ शरीक किए नहीं जा सकते. ही इज़ जस्ट अ स्लेव ऑफ अल्लाह अज़्ज़ा वजल, मैसेंजर की हद तक का ही उनका है.
से ओ मोहम्मद कम लेट अस कॉल आवर सन्स, हम हमारे बेटे और आपके बेटों को बुलाते हैं, हमारी औरतें आपकी औरतों को बुलाते हैं, हम अपने आप को और उनको बुलाते हैं, और हम सिंसियरली अल्लाह की इबादत करते हैं, और जो झूठ बोलते हैं उस पे अल्लाह की लानत है. When it was morning, Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam told them about Isa alayhi salam in the light of the recently revealed verses. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जो वही नाजिल हुई थी उसके बारे में उनको बताया. He left them for a whole day to consult and think over it. फिर उनको पूरे एक दिन के लिए छोड़ दिया गया था कि वो आपस में कंसल्ट करें और सोचें, तदब्बर करें. The next day they still showed disapproval to accepting Allah's words about Isa or to embrace Islam. फिर भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया जो अल्लाह के बात थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मैसेज था उसको एक्सेप्ट नहीं किया. Prophet suggested al-mubahala, which is for each party to supplicate and beg Allah to send his curse upon those who were telling lies. फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने al-mubahala को सजेस्ट किया. मुबाहला में ऐसा होता है कि अगर दो पार्टी हैं उनके बीच में इख्तलाफ है तो दोनों जो है दुआ करेंगी अल्लाह से, और जो झूठ बोल रहा है उसके ऊपर अल्लाह की लानत होगी. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये सजेस्ट किया. After that suggestion of his, the Prophet sallallahu alaihi wasallam came forward, wrapping Al Hassan and Al Hussein radhiyallahu anhuma under his garment, while Fatima radhiyallahu anha was walking behind him. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों नवासों को लिए, अल हसन रदियल्लाहु अन्हु and Al Hussein रदियल्लाहु अन्हु and Fatima रदियल्लाहु अन्हा उनके पीछे चल रही. Seeing that the Prophet was serious and prepared to face them firmly, they went aside and started to consult one another. Al-Aqib and As-Sayyid said to each other. अभी उन्होंने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकदम सीरियस है, अपनी फैमिली के साथ बढ़ रहे हैं और इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये जो दोनों लीडर्स थे अल-आकिब और सैयद, वो आपस में बात करने लगे. We shall not supplicate, for I swear by Allah, if he is really a prophet and exchanges curses with us, we will never prosper, nor will our descendants, and neither us nor our animals will survive it. वो कहते हैं कि अगर हम इस चीज के अंदर आ जाते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर समझो बदुआ दी, तो कहते हैं अगर वो रियल प्रॉफिट है तो हम पूरे के पूरे बर्बाद हो जाएंगे, हम हमारी औलाद कभी भी नहीं प्रॉस्पर करेंगे, हमारे जानवर हम सब बर्बाद हो जाएंगे, सब मर जाएंगे, तबाह हो जाएंगे. फाइनली दे डिसाइडेड टू लीव द मैटर टू द डिसीजन ऑफ अल्लाह's मैसेंजर अबाउट देयर कॉज. फिर उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे छोड़ दिया इस मैटर के डिसीजन को. दे केम टू हिम एंड सेड, वी अग्री टू व्हाट यू डिमांड फ्रॉम अस. फिर उन्होंने कहा हम मान लेते हैं जो भी आप हमसे डिमांड करते हो. Allah's messenger then ordered them to pay the jizya. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जिजिया पे करने के लिए कहा, and made agreement with them for the provision of 2,000 garments, 1,000 of them to be delivered in Rajab and the other 1,000 in Safar. फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ अग्रीमेंट किया कि वो 2,000 गारमेंट्स जो हैं वो डिलीवर करेंगे, 1,000 रजब में और दूसरा सफर में. With every garment they had to pay an ounce of gold, और हर गारमेंट के साथ उनको 1 ounce of gold भी पे करना पड़ेगा. In return, they had the covenant of Allah and His Messenger sallallahu alaihi wasallam. He gave them permission to practice their religion of religious affairs freely. उनका जो है एक अक़द होगा अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और फिर उनको इजाज़त दी गई कि वो अपना रिलीजन जो है वो फ्रीली प्रैक्टिस कर सकते हैं. They asked the Prophet to appoint a trustworthy man to receive the money. So he sent to them the trustworthy man of his nation, Abu Ubaidah bin al-Jarrah रदियल्लाहु अन्हु, to receive their wealth. उन्होंने कहा कि कोई एक भरोसेमंद आदमी उनकी तरफ भेजा जाए जिसको वो मनी जो है हैंड ओवर करे. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे भरोसेमंद आदमी जो थे अबू उबैदा बिन अल जर्राह रदियल्लाहु अन्हु को मनी कलेक्ट करने के लिए अपॉइंट किया. After that, Islam began to spread in Najran naturally, and they did not have to pay the jizya that the non-Muslims usually paid. थोड़े टाइम बाद इस्लाम नजरान में फैलने लगा और उन्हें फिर जिजिया पे करने की जरूरत नहीं पड़ी. It was said that Al-Aqib bin Sayyid embraced Islam soon after they reached Najran on their journey back home. Al-Aqib bin Sayyid जो है वो immediately लौटने के बाद उन्होंने दीन इस्लाम कबूल कर लिया. It is also said that the Prophet sallallahu alaihi wasallam sent Ali radhiyallahu anhu to them for the collection of charities and tribute. फिर आगे चल के ये भी हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रदियल्लाहु अन्हु को भेजा चैरिटीज और ट्रिब्यूट कलेक्शन के लिए. Number 13, the Bani Hanifa delegation. They arrived in Medina in the year 9th, a year after Hijri. They comprised of 17 people and included the master of liars, Musaylima bin Thumama bin Kabir bin Habib bin Al-Harith of Bani Hanifa. बनी हनीफा की डेलीगेशन जो है वो 9th आफ्टर हिजरी में पहुंची. 17 लोग थे और इसके अंदर एक बहुत बड़ा झूठा था. झूठा उसका नाम था
Musaylima bin Thumama bin Kabir bin Habib bin Al-Harith of Bani Hanifa. The group of delegates were housed in a helper's home. एक अंसार के घर में इनको रहने की जगह दी गई थी. They came to the Prophet and declared their acceptance of Islam. वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कबूल किया कि उन्होंने दीन इस्लाम उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है. As for the Musaylima the liar version, very concerning his embracing Islam. अल मुसलमा के बारे में मुख्तलिफ मिक्स्ड ओपिनियंस है कि शायद उसने कबूल किया नहीं किया पता नहीं, अल्लाहु आलम. As for Musaylima the liar, versions vary concerning his embracing Islam. Observation of all the versions shows clearly that Musaylima expressed disapproval and revealed arrogance, boastful spirit and expectations to be a prince. जहां तक मेजर वर्जन की राय है वो ये है कि मुसैलिमा ने डिसअप्रूव किया, अपने घमंड और तकब्बुर का उसने मुजाहरा किया और अपने आप को एक प्रिंस होने का दावा भी किया. At first, the Prophet tried to deal well with him charitably, but that did not work. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ थोड़ा सा दिलगनी करके अच्छी तरह से उससे बिहेव कर रहे थे, मगर वो इस बिहेवियर के साथ भी कुछ काम नहीं आया. Allah's messenger perceived evil in his soul and recognized that he was one of those two evils he dreamt of while sleeping. फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस चीज़ की खबर लग गई कि इसके अंदर जो है उसकी रूह जो है वो इवलिश है, और उन्होंने इस चीज़ को भी रियलाइज किया कि उन्होंने ख्वाब में दो इवल्स को देखे थे, तो ये उनमें से एक है. द प्रॉफिट हैड ड्रीम दैट ही हैड बीन ग्रांटेड द ट्रेजर्स ऑफ अर्थ. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि ख्वाब में कि उनको दुनिया के खजाने मिले दिए गए हैं. टू गोल्डन ब्रेसलेट्स फेल अपॉन हिज हैंड which distressed and worried him a lot. दो गोल्डन ब्रेसलेट्स जो हैं वो उनके हाथ में आ गिरे और उससे वो थोड़े परेशान हुए. He was taught by inspiration to blow them off, so he did that and they were gone. उनको ख्वाब में ही जो है वो इंस्पिरेशन वही आई कि उसको ब्लो कर दीजिए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वैसे ही किया और वो गायब हो गए. They were interpreted to be two liars who would come after him. ये जो दो ब्रेसलेट थे ये क्या इंटरप्रेट कर रहे थे कि दो झूठे आएंगे उनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद. So when Musaylima acted that way and showed disapproval, he realized that he would be one of the two liars. जब उसकी हरकत देखी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसैलिमा की, तो उनको पता चल गया कि वो दो लायर्स में से एक तो यही है. However, Musaylima used to say, if Muhammad appointed me a successor of his, I would be a Muslim. वो कहता रहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मुझे इमीडिएट अपना सक्सेसर यानी उनके बाद जो गद्दी नशीन टाइप हो वो मुसैलिमा हो, तो कहते हैं जब अगर उन्होंने मुझे ऐसा अपॉइंट किया तो ही मैं मुस्लिम बनूंगा. Later on, Allah's messenger came to him with a piece of a palm leaf in his hand, and in the company of his orator Thabit bin Qais bin Shamas radhiyallahu anhu, while he was among some of his friends. The Prophet spoke to him, but Musaylima addressed him by saying, if you agree to transfer the whole thing to me after your death, I will not stand in your way. अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है एक अपने हाथ में पाम लीफ लेकर अपनी कंपनी के साथ आए, जो उनके बीच में थाबित बिन कैस बिन शमास रज़ियल्लाहु अन्हु था और कुछ उनके दोस्त भी थे. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे बात की कि अगर तुम मुसैलिमा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की कि अगर आपने पूरी अपना जो ये है सिस्टम है ट्रांसफ़र कर दो मुझे अपनी आपकी मौत के बाद, तो फिर मैं आपके बीच में नहीं आऊँगा. Allah's messenger replied, if you ask me to give you this, that is a piece of a palm leaf, I would not grant it to you. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में वो पाम की लीफ थी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अगर तुम मुझसे ये पाम लीफ भी मांगो ना, तो ये भी मैं तुमको नहीं दूंगा. Your fate has been written down, even if you repented and stopped what you were doing. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि तुम्हारी कदर लिख गई है. अगर तुम माफी भी मांग लो या स्टॉप भी हो जाओ, लेकिन फिर भी जो कदर में लिख गई है लिख गई है. अल्लाह अपॉइंटेड दैट यू वुड बी स्लेन. अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने का फैसला है कि तुम्हारा जो कत्ल होने वाला है. एंड वल्लाही आई स्वेयर दैट आई सी यू नाउ इन द वेरी स्टेट दैट हैज बीन रिवील्ड टू मी. कहते हैं मुझे नजर आ रहा है किस तरीके से तुम्हारा जो अंजाम होने वाला है. यू विल हियर माई आंसर फ्रॉम हिम थाबित. देन ही वेंट अवे. और फिर उन्होंने कहा कि आपको मेरा जवाब जो है मिल जाएगा, और वो निकल गए वहां से. द प्रॉफिट्स प्रेडिक्शंस ऑफ मुसलिमा वुड कम ट्रू. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखा दिया गया था कि इसके साथ क्या होने वाला है ना. तो ये कब एक्चुअल क्या कहते हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया गया था वो एक्चुअली रिटर्न टू यमामा में हुआ था. जब वो जैसे ही यमामा में पहुंचा तो वो सोच रहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में क्या किया और वो उनका पार्टनर कैसे बन सकता है.
उसके ड्रीम्स और थॉट्स इतने ज्यादा चले गए आगे, यानी वो अपनी गफलत, अपनी वसवस, अपने तकब्बुर, घमंड में इतना आगे बढ़ गया कि उसने खुद अपने आप को प्रॉफिट डिक्लेयर कर दिया. To confirm his prophecy, he started uttering rhymed statements. He said that it was lawful to drink wine and commit adultery. अब वो जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कॉपी करने के पीछे था, तो वो भी कुछ राइमिंग सेंटेंसेस बोलता था, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्हम्दुलिल्लाह, असर की अजान हो रही है, सॉरी आई एम नॉट गेटिंग. Yes, yes. लेट्स क्लोज हियर, इंशाल्लाह हम लोग फिर कल कंटिन्यू करते हैं. सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. Walaikum assalam.